Hello students and welcome to your English language class. Today we'll be reading the second half of the chapter The Treasure Seekers 2. Now as we have already read in the previous video that the Bastable family children were looking out for treasure in their garden, so they decided to dig the soil under the flower bed there because the soil was soft, and they also called their next door neighbor Albert to help them in their treasure seeking adventure. Okay, so now let us start reading the second half. Albert next door, uncle rubbing his hands and looking at the hole with Albert's head in it. Mind you, keep very still. Now, Albert's uncle was being called by the children because he was stuck in a hole while digging. So they've just called his uncle to help them take him out from this hole. Now, his uncle says to Albert that just keep your head and your body still, otherwise, or might I chunk a bit out of you with the spade, or maybe you may get hurt due to the spade, because obviously he'll be using the spade to take out the soil to get him out of the hole. So in order not to hurt him anyhow, he asked him to stay still. Now then after a while he said, I confess that I am not absolutely insensible to the dramatic interest of the situation. And he says that okay, I am sensible or clever enough to understand the situation which you all are in right now. जिस सिचुएशन में तुम लोग अभी हो, मैं easily समझ सकता हूँ इसको, लेकिन my curiosity is excited. Still, I would like to know how my nephew happened to be buried. कि मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ ये जानने के लिए कि मेरा nephew यहाँ पर मिट्टी में कैसे दब गया. But don't tell me if you'd rather not. लेकिन अगर तुम लोग नहीं बताना चाहते हो तो it's okay. I won't force you. I suppose no force was used. लेकिन मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कोई ही वॉज नॉट बरिड फोर्सफुली, कि तुमने इसको जानबूझ के या इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसको बरी तो नहीं किया है. ओनली मॉरल फोर्स सेड एलिस. अब एलिस रिप्लाई करती है दैट वी हैव ओनली यूज द मॉरल फोर्स. दे यूज टू टॉक अ लॉट अबाउट मॉरल फोर्स एट द हाई स्कूल वेयर शी वेंट. अब एलिस जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे मॉरल फोर्स की बहुत बातें होती थी, तो इसलिए उसने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है. एंड इन केस यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स, आई विल टेल यू दैट इट इज़ मेकिंग पीपल डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू. मॉरल फोर्स क्या होता है कि आप लोगों से वो काम करवाओ जो वो नहीं करना चाहते, जस्ट बाय स्लैंगिंग देम और बाय यूजिंग सम हर्टफुल वर्ड्स और बाय हर्टिंग देयर ईगोज़. अगर आप किसी की इंसल्ट करो या किसी को चैलेंज करो कि नहीं नहीं तेरे बस की तो है ही नहीं, तू नहीं कर सकता, तो उससे क्या होता है, वो जो भी पर्सन है वो गुस्से में आके कई बार लोग काम कर देते हैं. और लाफिंग एट देम और प्रॉमिसिंग देम थिंग्स इफ़ दे आर गुड. या कई बार हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी या टॉफ़ी दूंगी, वट एवर. So this is known as the moral force. So Alice said that we have only used moral force on him. Only moral force? Said Albert next door's uncle. Well, Dora said, I am very sorry it happened to Albert. अब जो डोरा सबसे बड़ी सिस्टर है वो कह रही है कि शी इज़ वेरी सॉरी कि एल्बर्ट के साथ ऐसा हुआ. आई वुड रैदर इट हैड बीन वन ऑफ अस. अगर ये हमारे साथ होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. It was my turn to go into the tunnel, only I don't like worms. और डोरा ये भी कहती है कि टनल में अंदर जाने की बारी मेरी थी, लेकिन मुझे वर्म्स अच्छे नहीं लगते, so they let me off. इसलिए उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया जाने के लिए टनल में. You see, we were digging for treasure. और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्यों खोद रहे थे ज़मीन को? Because we were looking for treasure there. Yes, said Alice. And I think we were just coming to the underground passage that leads to the secret hoard. और वो कहती है कि और हम पहुंचने ही वाले थे उस अंडरग्राउंड पैसेज तक जहाँ पर वो सीक्रेट होर्ड मतलब जो हिडन ट्रेजर है वो मिल जाता.
when the tunnel fell in on Albert. और तभी क्या हुआ, जो टनल थी ऊपर से एकदम से उसके एल्बर्ट के ऊपर गिर गई. He is so unlucky and she sighed. उसने एकदम गहरी सांस ली और उसने कहा कि ये बेचारा कितना अनलक्की है, ओके, कि इसी के साथ ऐसा हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ. Then Albert next door began to scream again. अब एल्बर्ट बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बिकॉज ही वॉज inside the tunnel and he was all stuck up, so he started screaming again and his uncle wiped his face. और उसके अंकल ने उसका अपना फेस जो है वाइप किया, हिज ओन फेस. एल्बर्ट का फेस नहीं वाइप किया, उन्होंने अपना खुद का फेस वाइप किया, अपने फेस को क्लीन किया, साफ किया. नॉट एल्बर्ट्स विद हिज सिल्क हैंडकरचिफ. और उन्होंने एक सिल्क का हैंडकरचिफ निकाल के और अपने फेस को वाइप किया बिकॉज ही मस्ट बी स्वेटिंग ड्यू टू द हीट. एंड देन ही पुट इट इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट. इट सीम्स अ स्ट्रेंज प्लेस टू पुट अ हैंडकरचिफ बट ही हैड हिज कोट एंड वेस्ट कोट ऑफ. उन्होंने अपना कोट और अपना वेस्ट कोट उतार रखा था, तो उन्होंने अपना हैंडकरचिफ कहाँ रखा, अपनी ट्राउज़र की पॉकेट में. एंड आई सपोज ही वॉन्टेड द हैंडकरचिफ हैंडी. डिगिंग इज़ वार्म वर्क. और उसको अपने हैंडकरचिफ को उन्होंने ट्राउज़र की पॉकेट में क्यों रखा, क्योंकि वो उसको बार बार यूज़ कर रहे थे, तो ही वॉन्टेड टू कीप द हैंडकरचिफ हैंडी. एंड डिगिंग इज़ वार्म वर्क मीन्स you sweat a lot whenever you dig. So he told Albert next door to stop it or he wouldn't proceed further in the matter. अब उसके जो अंकल हैं एल्बर्ट के, वो कहते हैं stop screaming, otherwise I won't be able to help you in this matter. So Albert stopped screaming and presently his uncle finished digging him out. और एल्बर्ट ने अब चिल्लाना बंद कर दिया और उसके अंकल ने उसको जो he was digging him out, he finished his work. That means he took him out. We all said how sorry we were, but Albert next door wouldn't say a word to us. अब हम सब उसको सॉरी बोल रहे थे, लेकिन एल्बर्ट जो है बिल्कुल चुप था, वो उसने एक वर्ड भी नहीं बोला. He was most awfully sick to think he had been the one buried, when it might just as well have been one of us. अब वो इस चीज़ से ज़्यादा दुखी था कि वो ही क्यों बरी हुआ उस टनल में, हम में से कोई एक क्यों नहीं हुआ. So he was quite upset about that. So you were digging for treasure, said Albert next door's uncle, wiping his face again with his handkerchief. और एक बार फिर उन्होंने अपना वो सिल्क हैंडकरचिफ निकाला and he was wiping his face and he was asking that okay, so you were digging for treasure. Well, I fear that your chances of success are small. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हारे कोई चांसेस ब्राइट हैं. You won't be able to find any treasure out here. I've made a careful study of the whole subject. और मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से केयरफुली स्टडी किया है. What I don't know about buried treasure is not worth knowing. और जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इस buried treasure के बारे में नहीं जानता हूँ. I know everything. And I never knew more than one coin buried in any one garden and that is generally hello what's that. और वो कहता है कि जनरली 1 या 2 कॉइन ही आपको मिल सकते हैं किसी भी गार्डन में जो कि किसी ने छुपाए हों. इससे ज़्यादा ख़जाना कभी किसी को नहीं मिला. और 1 कॉइन में क्या होता है. ही पॉइंटेड टू समथिंग शाइनिंग इन द होल ही हैड जस्ट ड्रैग्ड एल्बर्ट आउट ऑफ. और जिस होल में से अभी अभी खींच के, ड्रैग मतलब खींचना, अभी अभी एल्बर्ट को उन्होंने जिस होल में से खींच के बाहर निकाला है, देयर वाज समथिंग शाइनिंग लाइंग देयर. वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था जो शाइन कर रहा था. सो ऑसवर्ल्ड पिक इट अप. ऑसवर्ल्ड ने उसको उठाया. इट वॉज अ हाफ क्राउन. ना हाफ क्राउन मतलब वहाँ जो कॉइन्स चलते हैं लंदन में, तो इट वॉज हाफ क्राउन. ओके. वी लुक्ड एट ईच अदर स्पीचलेस विद सरप्राइज एंड डिलाइट लाइक इन बुक्स. और हम जो ये सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे, वो एक दूसरे को चुप करके सरप्राइज़ में और खुशी में एक दूसरे को देखने लग गए. जस्ट लाइक इन बुक्स, जैसा कि बुक्स में लिखा रहता है कि उनको बहुत बड़ा ट्रेजर मिला. Now, well, that's lucky at all events, said Albert next door's uncle. अब एल्बर्ट के जो अंकल थे उन्होंने कहा कि वाओ दैट्स लकी, कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम लोग बहुत लकी हो. लेट्स सी दैट्स 5 pence ईच फॉर यू. और वो उस हाफ अ क्राउन को उन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके बोलते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट.
डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर उनके बीच में, तो वो कहते हैं कि हर एक बच्चे को 5 पेंस मिलेंगे। इट्स 4 पेंस समथिंग, आई कांट डू फ्रैक्शन सेड डिकी। अब डिकी कहता है कि नहीं, पूरे 5 पेंस तो नहीं मिलेंगे, बट 4 पेंस और कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। 4, बट पूरे 5 पेंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर आर 7 ऑफ अस। ओ यू काउंट एल्बर्ट एज वन ऑफ यू ऑन दिस ओकेजन। तो वो कहते हैं कि एल्बर्ट को भी तुम काउंट कर लो, एल्बर्ट को भी अपने साथ काउंट कर रहे हो। ऑफ कोर्स सेड एलिस, एंड से ही वॉज बरिड आफ्टर ऑल। और उसने कहा हाँ, हम एल्बर्ट को काउंट कर रहे हैं क्योंकि देखो वही तो था वो जो कि बरी हो गया था। वाई डोंट वी लेट हिम हैव द ऑड सम थिंग्स एंड वी ऑल हैव 4 पेंस ईच। अब वो कहते हैं कि हम लोग 4 पेंस ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा जितना होगा वो सब हम किसको दे देंगे, एल्बर्ट को। We all agreed to this and told Albert next door we would bring his share as soon as we could get the half crown changed. और जैसे ही हम चेंज कराएंगे हाफ क्राउन को, हम उसका शेयर एल्बर्ट को दे देंगे। He cheered up a little at that and his uncle wiped his face again. अब एल्बर्ट जो है ये सुनकर थोड़ा सा खुश हुआ और उसके अंकल ने अगेन ही वाइप्ड हिज फेस अगेन। ही डिड लुक हॉट एंड बिगैन टू पुट ऑन हिज कोट एंड वेस्ट कोट। अब उनको काफ़ी गर्मी लग रही थी, ही वॉज स्वेटिंग अ लॉट एंड ही स्टार्टेड वेयरिंग हिज कोट एंड वेस्ट कोट अगेन। व्हेन ही हैड डन इट ही स्टूप्ड एंड पिक्ड अप समथिंग। और जब उन्होंने वो अपना वेस्ट कोट और कोट पहन लिया था, उसके बाद वो नीचे झुके और उन्होंने कुछ उठाया। ही हेल्ड इट अप एंड यू विल हार्डली बिलीव इट, बट इट इज़ क्वाइट ट्रू, इट वॉज अनदर हाफ क्राउन। और उन्हें दोबारा से हाफ क्राउन और मिला। टू थिंक दैट देयर शुड बी 2, ही सेड। इन ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ बरिड ट्रेजर आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है और मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, ना कहीं देखा कि किसी को 2 कॉइन्स मिले हों। इट्स यूजुअली एक ही कॉइन सबको छुपा हुआ मिलता है जब भी वो कोई ट्रेजर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट यू गाइज आर लकी इनफ दैट यू हैव फाउंड 2। आई विश एल्बर्ट नेक्स्ट डोर्स अंकल वुड कम ट्रेजर सीकिंग विद अस रेगुलरली। और जो नरेटर है वो कह रहा है कि एल्बर्ट नेक्स्ट डोर के अंकल को रेगुलरली आना चाहिए हमारी हेल्प करने में, ट्रेजर सीकिंग में, बिकॉज ही इज़ क्वाइट लकी फॉर अस। ही मस्ट हैव विद वेरी शार्प आइज। और फॉर डोरा सेज शी वॉज लुकिंग जस्ट अ मिनट बिफोर एट द वेरी प्लेस। और डोरा कहती है अभी कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही 1 मिनट पहले ही उसने उस जगह पे नज़र डाली होती है, एंड there was nothing lying on that, and suddenly Albert's uncle found this half crown, so he must be having very sharp eyes, कि उनकी आंखें बहुत तेज़ हैं क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले मैंने वहाँ पे देखा था और वहाँ कुछ भी नहीं था। where the second half crown was picked up from, जहाँ से अभी अभी उन्होंने हाफ क्राउन उठाया है, डोरा ने कुछ देर पहले वहाँ देखा था and there was nothing on it. And she never saw it. Okay, she couldn't see any half crown lying there, but Albert's uncle did. So, did you understand that what happened here? Actually, the half crowns, the 2 half crowns were of Albert's uncle, and he pretended that he has found them lying on the ground because he wanted the kids to have the pleasure of seeking treasure. वो चाहते थे कि उन बच्चों को खुशी मिले कि उन्होंने वो अपना जो वो ट्रेजर ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गया है। He wanted to help them of course, so he pretended that he has found the 2 half crowns lying on the ground. जबकि वो हाफ क्राउन्स किसके थे, वो एल्बर्ट के अंकल के ही थे, और उन्होंने चुपके से अपनी पॉकेट से नीचे गिरा दिए थे और बाद में प्रिटेंड किया एज इफ उनको ये वहाँ पर गिरे हुए मिले हैं। ओके, सो नाउ यू सी ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन, एंड ही रियली वॉन्टेड द किड्स टू हैव द प्लेजर ऑफ being smart enough to find the treasure. Okay, so this was the story. I hope you have understood it well. Now you have to write the word meaning and you have to write the question answers in your fair notebook, and you have to submit your work by 3 p.m. tomorrow. And thank you for watching this video.